University, Delhi. GIBS is currently offering postgraduate courses in BBA, BBA LLB, BALM. Our institute has been awarded an A grade by the National Assessment and Accreditation Council in the second cycle. Recently, GIBS stood at number 1 for its BBA program at the Times Peaceful Survey to 2023, securing the 19th rank among the top 20 private B schools in North India for its MBA program. GIBS also achieved the 30th All India rank in the Internshala Annual Ranking 2022 and the 13th zonal rank out of 98 participating colleges in the North Zone for its internship selection during the year 2022. GIBS also received an ED Leadership Excellence Award in 2023 and Academic Excellence and Corporate Affairs in Higher Education for Geeta Ratan Educational Groups by the Times Group. As we come together to celebrate knowledge, talent and innovation, let us harness this energy to create an atmosphere of cooperation, fostering lifelong connections and unforgettable experiences. Together, let me make a seminar a celebration of unity and excellence in the field. Now, let me introduce you to the guest for the event, Ms. Priyanka Agarwal, co-founder and CEO of AppsCall Software. As a seasoned executive with 15 years of experience specializing in IT development and strategic planning, she offers a unique combination of expertise in technology and business knowledge to her position as COO. She is holding a BTech, MBA and Master's degree in Data Science from IIT Bangalore. Thus, she is competent in both the technical as well as the management efficiency, cooperation, and profitable development over the long run. She has effectively managed multidisciplinary teams, placed creative initiatives into action and optimized operations throughout her career. She has a strong interest in using data-driven insights and a commitment to assisting the organizational establish an excellence and continuous improvement culture. As COO, she is committed to connecting operational efforts with the company's strategic objective, driving performance and producing exceptional outcomes. We are truly honored to have you here with us, ma'am. Now, let's welcome Dr. Urvesh Chaudhary, ma'am, to present a green welcome to our esteemed speaker for the event. Now, I would like to invite an esteemed guest to deliberate with the students. Feeling today? What? You want to say something? No. So guys, can I know that in which course you are and which semester you are currently? BBA. And any more? MBA students are here also? No, only BBA students are here. Okay. So MBA students come here? Last year and so guys, what you understand from any organization and job responsibility? Guys, tell me about what you know about any organization and the job responsibilities in any organization. Last bench. Please come here. Please come here. But so तो मत जाओ. चलो. कोई मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बता सकता है? Anyone? चलो आज हमारा क्या टॉपिक है? AI driven HR transformation. How we can use AI in our HR and in any organization, right? So, why we use AI in HR department? Can anyone tell me that why we use AI? Yeah, for making the task easier and better, right? And saving our time so that the HR professional helps in the career growth.
resume and taking the interview. Do you know any of the tools that from which we are taking the recruitment of the employees? Right? ChatGPT सारा काम नहीं कर सकता दुनिया का. And the next one is personalized experience. And how it improve the personalized experience, like anyone registered on any Coursera, Udemy, anyone registered on any of the platform? So when you register any of the platform like Coursera, Udemy, so what it did, they take your information and provide you that what course is best suited for you, right? And next is enhanced engagement. So how we can enhance our engagement with this AI? Like we take an example of work from home, right? In 2020, many of the people are doing the work from home, right? So many of the people or many of the candidates find that we are not engaging in the office environment. They feel like they are lacking the office environment, or they feel like they are getting bored in that environment of the home, right? So they want that, no, we want the office culture, we want to go to office. So they provide the feedback to the system, and the HR professional will work on that system so that we can enhance their engagement in the work or in the office culture, right? बच्चों को समझ में आ रहा है या बस ऐसे ही चल रहा है सर? ऐसे ही चल रहा है. कैसे समझ में आएगा? अच्छा, AI समझते हो? क्या समझते हो AI से? क्या चीटिंग करोगे? पेपर चीटिंग करके पास होके सब काम चल जाएगा? अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो? फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर. तो थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो. आज की दुनिया में AI बहुत आगे बढ़ चुका है. अगर तुम उसको नहीं समझोगे तो ये जो 2 साल है बाद में जाके तुम्हारे 5 साल स्ट्रगल में ही निकल जाएंगे, है ना? तो प्लीज सुन लो और समझ लो, ठीक है? और हम क्या कर सकते हैं AI के थ्रू? अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंट बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? हम अपने ऑपरेशंस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस, हम अपने स्कूल के ऑपरेशंस, हम अपने कॉलेज के ऑपरेशंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? कोई बता सकता है? If you do not know the answer, better listen to ma'am. ठीक है, चलो. अब उसके बाद क्या आता है? इम्प्रूव टैलेंट मैनेजमेंट. हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं AI से रिलेटेड, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे टैलेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं कि हम स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, राइट? और अब जैसे तुम लोगों की हायरिंग हुई रिक्रूटमेंट में, राइट? लेकिन आप उसको हम उसको कैसे, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखेगी कि मुझे इस रिक्रूटर को HR मैनेजर बनाना है, ऊपर आपको प्रमोट करना है, तो हम उसमें टैलेंट मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं. कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियसली जब हमारे यहाँ AI बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट होगी तो हम कल्चर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. अब क्या होता है कि हमारे पास डेटा होता है. AI जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसको हम डेटा देते हैं और उस डेटा से कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, राइट? अब डिसीजन मेकिंग AI की गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है ना? तो हमको डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है? सही करनी है, इस एग्जांपल की तरह नहीं करनी है. ये एग्जांपल समझ में आ रहा है? ये तो थोड़ा फनी है यार. अब तो थोड़ा सा फनी. हाँ, सॉरी, रेस्पेक्ट एग्जांपल के लिए. क्या रेस्पेक्ट है? सॉरी, कुछ तो बोलो आई टॉपिक के लिए. अभी मुझे फील हो रहा है कि आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो इस टॉपिक के लिए. आपको सब आता है.
पागल की तरह। अब कोई मुझे बता सकता है कि हम क्या ट्रेडिशनल में यूज करते थे पहले और क्या अब हम एडवांस वर्जन यूज करते हैं फॉर HR हैंडलिंग, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन हैंडलिंग? पहले फ्रेश प्रोसेस चलता था, मैम एप्लीकेशन का आती थी, फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन होता था, उसके बाद फिर हम लिक्विड करते थे, फिर इंटरव्यूज होते थे, पर्सनल इंटरव्यूज होते थे और मैम फिर उसके बाद मैम एडवांस मेथड्स में मैम AI की मदद से हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, ऑनलाइन मेथड ये है जिससे हम लोग उसको देख लेते हैं कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा नहीं है, कौन सा सुटेबल है। एटलीस्ट बोल तो रही है ना, ठीक है। तो पहले हमारे ट्रेडिशनल पे क्या होता, हमें ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे, हमें फाइल्स, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 300 लोग हैं तो मुझे 300 फाइल चाहिए उनका डेटा मेंटेन करने के लिए, राइट। मैं उनका डेटा एक क्लिक पे नहीं निकाल सकती हूँ, मुझे पूरी फाइल पलटनी पड़ेगी, छाटनी पड़ेगी कि इसने कब हॉलीडे लिया था, ये कब समर ब्रेक पे गया था, कब विंटर ब्रेक पे गया था, राइट, कब इसने पेरेंटल लीव ली थी। अंडरस्टूड? सो नाउ वी हैव द एडवांस मेथड कि हम जस्ट एक क्लिक पे हम अपने डेटा से अपने इंसाइट्स निकाल सकते हैं, राइट। पहले हमारे ट्रेडिशनल में क्या चलते थे, मैनुअल पेपर वर्क चलता था, इन पर्सन इंटरव्यूज होते थे कि इंटरव्यूअर सामने बैठा, इंटरव्यू उसके सामने बैठा है तो इन पर्सन इंटरव्यू हो रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या होता है, सॉफ्टवेयर ही आपका इंटरव्यू ले सकता है, राइट। स्प्रेडशीट्स मेंटेन करनी पड़ती थी, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता था जिसमें बहुत टाइम लग जाता था उस प्रोसेस से इंटरव्यू कंडक्ट करने में या किसी कैंडिडेट को ऑनबोर्ड करने में, राइट। नाउ व्हाट आर द एडवांस मेथड, बहुत सारे टूल हमारे आ गए हैं, HRIS, HR इंफॉर्मेटिव सिस्टम, AI पावर्ड रिक्रूटमेंट, हम जो रिक्रूटमेंट कर सकते हैं वो AI क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस, आजकल सब कुछ क्लाउड पर है। लाइक मेरे अगर ऑफिस एक नोएडा में है, एक पुणे में है, राइट, तो मुझे उन दोनों का डेटा कैसे एक हेड ऑफिस में लेकर आना है ना, कौन किस प्रोजेक्ट से फ्री हुआ एम्प्लॉय, तो मैं उसको दूसरी ब्रांच के प्रोजेक्ट में लगा सकती हूँ। तो ये मेरे को क्लाउड एक्सेस होना चाहिए डिफरेंट ब्रांचेस के डेटा का। तो क्लाउड बेस्ड सिस्टम क्या होता है वो समझ में आया? नहीं पता? क्लास में बैठे हो या तुम भी कहीं शॉप का काम कर रहे हो अभी? हाँ? कोई बता सकता है मैंने क्या एग्जाम्पल दिया? आप बता सकते हो? मैम किड्स मतलब बच्चे तो इंटरेस्टेड नहीं है। Then we have the mobile application. तो अब हमारे क्या होता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो मोबाइल एप्लीकेशंस में भी होते हैं, जिससे एम्प्लॉय क्या कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने जो भी उनके डेली के टास्क होते हैं उनको वो एंटर कर सकता है, जिससे वो इंफॉर्मेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स के पास तक और HR मैनेजर्स के पास तक पहुंचती है। ऐसे ही हमारे एम्प्लॉय सेल्फ पोर्टल्स होते हैं जो लैपटॉप या फिर वेबसाइट के थ्रू एक्सेसिबल होते हैं। कोई मुझे वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशंस में डिफरेंस बता सकता है? हाँ जी, so we will take some real time examples. Do you know the Deloitte company? कोई बता सकता है मुझे कि Deloitte कंपनी क्या करती है? नाम सुना है? नाम सुना है? तो कभी जानने की कोशिश करिए कि वो करती क्या है? प्लेसमेंट देती है, ऑब्वियसली प्लेसमेंट देती है। उसके अलावा जब आपको उस कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए तो आपको ये जानना भी पड़ेगा कि वो कंपनी करती क्या है, राइट? डेलॉयट एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जो कि अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल एडवाइस देती है, टैक्स एडवाइस भी देती है, राइट? And the company has more than 15,000 employees all over the
राइट? सो सम ऑफ द एग्जांपल इज कि डेलॉइट अपने एम्प्लॉइज को कैसे मैनेज करती है, यूनिलीवर अपने एम्प्लॉइज को मैनेज करने के लिए चैटबॉट सिस्टम यूज करता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है चैटबॉट सिस्टम क्या होते हैं? मैम चैटबॉट सिस्टम कोई डाल दे तो आपका इंस्टेंटली रिप्लाई कर देता है, कोई इनबिल्ट रोबोट होता है जो बिना चैट के। हाँ, तो इससे हमारा क्या होता है कि हमारी क्वेरी इंस्टेंटली सॉल्व होती है। ऐसा नहीं कि मैंने एक क्वेरी रेज की, वो एचआर डिपार्टमेंट तक गई, एचआर डिपार्टमेंट अभी बिजी है, देन वो मुझे रिप्लाई करेगा। इट्स लाइक कि आपको वो रिस्पॉन्स तुरंत मिल रहा है, राइट? एंड हाउ एआई वर्क, एआई कैसे वर्क करता है? पैटर्न रिकॉग्निशन, सेकंड इज फीडबैक कलेक्शन एंड थर्ड इज कोचिंग, राइट? सो कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है कि हम कैसे पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं, कैसे फीडबैक कलेक्शन करते हैं और कैसे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं? यार मैं इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज फोकस कर लो, है ना? तो जैसे मान लो अभी ये जो आया था, ये क्या नाम था इसका? गगन। गगन की एक शॉप है, ठीक है? उसमें हाँ, मसालों की गगन की शॉप है, ठीक है? उसके पापा के बाद उसी की है, उसी की शॉप है। आप वो क्या उसने अपनी शॉप पर एआई सिस्टम इंटीग्रेट किया, उसने अपनी शॉप पर एआई सिस्टम इंटीग्रेट किया। उसे से ये पता चला कि दोपहर के 2 बजे क्या होता है कि सबसे पहले हम कैंडिडेट को मैसेज करते हैं, तो स्क्रीनिंग मैसेज करते हैं कि कैंडिडेट कैसे रिप्लाई कर रहा है, किस हिसाब से बैठ रिस्पॉन्स कर रहा है, तो सारा चीज़ मैसेज की जाती है, वो देखा जाता है उसमें। उसके बाद सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद हम फीडबैक लेते हैं कि उन्होंने जो भी बताया तो कितनी गलतियाँ हैं बाद में, ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सके अपने लिए, ताकि चैट बॉट की भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि हर कोई कैंडिडेट यूज करना है यूट्यूब के लिए कि अपना एआई का इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होता है कि इंटरव्यू देता है, लेकिन ये बोल जाता है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि वो चैटबॉट को नाम से पता चल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ बोलने से उनके करते ही पता चल जाता है। देखिए पता चल जाता है। हम फीडबैक हम यही कहेंगे कि उसमें कि अगर अपनी गलती ना ये गलती को निकाले तो हम खुद अपनी एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हैं। और हम कोचिंग में ये है कि एआई भी आपका जैसे एजुकेशन आपके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी एक कोचिंग के तरीके से आप वो करते हैं। हाँ, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन और इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में देखते हैं कि मेरा मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक मार्ट है, एक मेरा शॉपिंग मार्ट है। उसमें मैंने क्या फाइंड आउट किया? उसमें मैंने क्या फाइंड आउट किया कि ड्यूरिंग सर्टेन आवर्स ऑफ द डे मेरी सेल्स बहुत कम हो जाती है ना? मैंने ये कुछ इंसाइट्स बहुत कम हो रही है, राइट? अब मैनेजर क्या करेगा? उस डेटा से और इंसाइट निकालेगा कि 2 से 4 के बीच में मेरी सेल क्यों कम हो रही है। तो क्या होगा? उसने क्या इंसाइट निकाले? फॉर द एग्जाम्पल कि 2 से 4 में मेरे पीक आवर्स ज़्यादा होते हैं और उस टाइम में मेरा स्टाफ कम पड़ जाता है, राइट? ये आप डेटा से आपने कुछ इंसाइट्स निकाले, देन मैनेजर क्या करेगा? अपने या तो स्टाफ बढ़ाएगा या अपने उन्हीं स्टाफ को वो कोचिंग दे सकता है कि आपके प्रोडक्ट लेवल पर, आपके सेल स्किल्स पर, राइट? तो वो उसे कोचिंग देगा। समझ में आया एग्जांपल कि क्यों इम्पोर्टेंट है? लाइक एक रिसर्च हुई थी, एक रिसर्च यूएस के रिसर्च में ये इंसाइट्स निकले थे कि जहाँ पर डायपर रखे होते हैं वहाँ पर अल्कोहल ज़्यादा बिकती है, राइट? अब वो पता नहीं क्या उसके पीछे लॉजिक था, बट ये केस स्टडी है। आपको मॉल में जाते हो, देखते हो ना कि कहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है, देखते हो ना? तो वो सब भी कैसे है, लेकिन प्रॉपर एआई के थ्रू जनरेट होता है कि इसके साथ में मुझे ये वाला सामान रखना है तो ये वाला सामान मेरा ज़्यादा बिकेगा, राइट? ऐसा नहीं कि स्टोर में जहाँ जगह मिली वहाँ मैंने सामान रख दिया। सो यू हैव टू टेक द इंसाइट्स कि मुझे अपने मॉल में डायपर्स कहाँ रखने हैं, अल्कोहल कहाँ रखना है, साबुन कहाँ रखना है, सर्फ कहाँ रखना है। सो वी विल टेक द इंसाइट्स फ्रॉम
आपने कोर्सेरा पे एंट्री की, आपने अपने स्किल्स डाले, तो आपको वो ये दे देगा कि आपको BBA में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आपको उसके बाद ये कोर्स और करना चाहिए, आपको BBA के बाद MBA करना चाहिए। तो कोर्सेरा, लिंक्डइन, एवरीवेयर वी यूज AI, राइट? These are some of the benefits, insights हमें AI के थ्रू इंसाइट्स मिलते हैं, बट इंसाइट्स हमारे इस तरीके के नहीं होने चाहिए जो मैंने अभी ये एग्जाम्पल दिखाया था, राइट? है ना? AI भी लिमिटेशन क्या है? AI भी फेल होती है क्योंकि उसमें ह्यूमन टच नहीं होता है। उसने तो निकाल के दे दिया कि अगर आपने स्टूल खरीदा तो आपका ये भी बिका और ये भी बिका, राइट? बट इसमें ह्यूमन टच की भी जरूरत होती है जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ ये मेरी एनालिसिस गलत है। लिमिटेशन सेम, हमें अपनी एल्गो को, हमें अपनी डिसीजन मेकिंग को चेक करना होता है क्योंकि AI जरूरी नहीं है जो AI ने एल्गोरिथम निकाली वो बिल्कुल ठीक निकाल दो। अब हमारे कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि एक टूल होता है AI बेस्ड गोरिल्ला। किसी ने सुना है गोरिल्ला टूल? ठीक है, तो गोरिल्ला टूल क्या करता है? ये बहुत सारे टूल्स, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सारे टूल्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है AI में, जैसे कि इसके बहुत सारे IT कंपनीज को दे सकता है, हेल्थ केयर को दे सकता है, रिसर्चर्स को दे सकता है। उसमें रिसर्चर क्या कर सकते हैं? अपना सर्वे बना सकते हैं, सर्वे से फीडबैक ले सकते हैं और उस डेटा पर इनसाइट्स जनरेट कर सकते हैं, राइट? एक हमारा होता है टेस्ट गोरिल्ला। टेस्ट गोरिल्ला किसी को पता है? टेस्ट गोरिल्ला क्या करता है? लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जावा डेवलपर की रिक्वायरमेंट है ना? और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फ्री नहीं है कि उस जावा डेवलपर का इंटरव्यू ले सके, राइट? तो टेस्ट गोरिल्ला क्या करेगा? हम टेस्ट गोरिल्ला को बताइए कि मुझे एक जावा डेवलपर की नीड है और उसके लिए आप एक क्वेश्चन सेट प्रिपेयर करो, राइट? तो ये खुद से क्वेश्चन सेट प्रिपेयर करेगा एंड देन उसका टेस्ट लेगा। उस टेस्ट के हमें इंसाइट्स भी देगा कि इस कैंडिडेट को कितने स्टार मिले, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना फिट है, राइट? Content Gorilla, this is also provided by Gorilla itself. Gorilla is a platform. They provide tools like Text Gorilla, Content Gorilla. Content Gorilla क्या करता है? हमें कुछ ब्लॉग्स निकाल के देता है, आर्टिकल्स निकाल के देता है, लाइक समथिंग लाइक ChatGPT। लेकिन ChatGPT क्या करता है? हमारे लिए एक HTML पेज नहीं बना के देगा, राइट? बट हम Content Gorilla से क्या कर सकते हैं? हम अपना एक HTML पेज भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर टेकिंग द सर्विस फ्रॉम डॉक्टर्स, फ्रॉम IT रिक्रूटर्स, फ्रॉम एनी पर्सन, राइट? समझ में आया? हमने एक गोरिल्ला प्लेटफॉर्म बताया। गोरिल्ला प्लेटफॉर्म के हमने 2 टूल्स बताए, कौन से? टेस्ट गोरिल्ला और कंटेंट गोरिल्ला। टेस्ट गोरिल्ला क्या करता है? टेस्ट जनरेट करता है, लाइक फॉर एनी जावा, फॉर PHP। अगर मुझे AWS की रिक्वायरमेंट है तो मैंने डाल दिया कि माइक्रो सर्विसेज के लिए मुझे स्किल वाला कैंडिडेट चाहिए, राइट? JWS से आना चाहिए, AWS से आना चाहिए, सर्वरलेस आर्किटेक्चर से आना चाहिए। तो वो क्या करेगा? उस बेसिस पे आपका कंटेंट क्रिएट करेगा एंड उसका एक टेस्ट प्रिपेयर करेगा जो कि टेस्ट गोरिल्ला खुद से टेस्ट ले सकता है, राइट? सो नौकरी पोर्टल के बारे में तो सुना होगा सबने, है ना? तो नौकरी क्या करता है? मैम पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज शो होती हैं कंपनीज वगैरह जिनको भी न्यू एम्प्लॉयज की नीड होती है, और मैम पे वो अपना न्यूज़ वगैरह कुछ शेयर करना होता है, तो वो हेल्प करता है मैम कंपनी का जॉब। हाँ, नौकरी भी ऐसे ही काम करता है जैसे अमेजोन काम करता है। अमेजोन में क्या होता है कि आप कुछ ब्राउजर पे लिखते हैं कि मान लो आपने कुछ सर्च किया कि मुझे पेन ड्राइव चाहिए, तो वो आपको अमेजोन क्या करता है? पेन ड्राइव के
लिंक देता रहता है। आप चाहे फेसबुक पे जाओ, चाहे अपने ब्राउजर को खोलो, तो वो आपको पेन ड्राइव से रिलेटेड एड्स देता है ना। आपने कुछ प्रीवियसली सर्च किया है, देन वो उसी के रिलेटेड आपको एड्स देता है, राइट। आपको पता है आपकी इंफॉर्मेशन कितनी जगह जा रही है। चाहे आपने कुछ भी सर्च किया ब्राउजर पे, राइट, तो मिंत्रा भी आपको वही इस टाइप का स्टाइल का ये खरीदो, इस टाइप का स्टाइल का ये खरीदो, राइट। तो आपने इंफॉर्मेशन डाली अपनी ब्राउजर पे, वो ब्राउजर की इंफॉर्मेशन आपके मिंत्रा पे भी जा रही है, अमेजोन पे भी जा रही है, राइट। एंड द सेम वे अगर आप डालते हो ब्राउजर पे कि मुझे BBA के बाद मुझे रिक्रूटमेंट में जाना है, तो वो नौकरी क्या करेगा, आपको रिक्रूटमेंट के जितनी भी जॉब्स होंगी जो नौकरी पे पोस्टेड होगी, उसके आपको एड्स दिखाएगा कि आप इस कंपनी में पोस्ट कर सकते हो अपना रिज्यूम, राइट। सो नौकरी क्या करता है, जॉब इंफॉर्मेशन देता है, रिज्यूम बिल्डिंग करता है। जो आप रिज्यूम शायद 2 दिन में बनाओगे, वो आपको मिनटों में बना के दे देता है, और बहुत अच्छा बना के दे देता है आपका रिज्यूम। मतलब IT ट्रेंड्स और रिसेंट ट्रेंड्स के साथ आपको रिज्यूम बना के दे देता है, राइट। स्किल असेसमेंट कर लेता है। लाइक मैंने जैसे बोला कि आपने कुछ पोस्ट किया है कि मुझे जावा में जॉब चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपको उससे रिलेटेड कंपनी सर्च करके देगा। कर रहा है ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको पर्सनलाइज ट्रेनिंग कंटेंट देते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, कोर्सेरा हो गया, लिंक्डइन हो गया। इसमें क्या होता है, आपने कुछ अपना स्किल्स फिल किए, तो ये आपको क्या देगा कि आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहिए, आपको डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहिए, जिससे कि आप आगे फ्यूचर में इसका यूज़ कर सको। और वो जब आप उससे कोर्स करोगे, तो वो आपको बाद में ये भी बताएगा कि आप कहाँ पर जॉब ओपनिंग्स है और आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ हमारे टूल्स हैं, राइट। अच्छा, कोई मुझे ऑटोमेशन और AI में डिफरेंस बता सकता है? What is the difference between in automation and AI? कुछ तो पता होगा? हाँ। ह्यूमन टच किसमें? दोनों में से किसी में ह्यूमन टच की जरूरत नहीं है। ऑटोमेशन इज सॉरी, कुछ बोल रहे थे? ठीक है, तो हमारा ऑटोमेशन क्या है? Automation is we are standardizing our process, we are taking the data from the employees, we are regularize our process. But what is AI? AI takes the data from that tool and create the insights from it, right? Like आप स्कूल कॉलेज आते हो, आप डेली अटेंडेंस आपकी या मैनुअल अटेंडेंस लगती है या पंच करते हो? हाँ लगती है। अगर इसी को मैं ऑटोमेट कर दूँगी, आप आओ अपना बायोमेट्रिक लगाओ, राइट। जब भी आप आओगे बायोमेट्रिक से क्लास में एंट्री करोगे, और जब भी आपको जाना बायोमेट्रिक से क्लास से एक्सेस करोगे, वरना ये गेट बंद रहेगा, आप कर ही नहीं सकते हो बिना अपने इम्प्रेशन के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने ऑटोमेट कर दिया। लेकिन इससे हमने जो डेटा से इंसाइट्स जनरेट किए, कैसे कि आप दिन में कितनी बार बाहर गए, आप 10 मिनट पहले गए क्लास से, आप 10 मिनट बाद गए, राइट। सो ये क्या है, हमारा AI डेटा से हमें इंसाइट जनरेट करना इज AI, राइट। तो क्या डिफरेंस है ऑटोमेशन और AI में? नहीं समझ में आया? और AI में कुछ डिफरेंस बता सकते हो? सबको बताओ जोर से, जितना जोर से मैं चीख रही हूँ ना, उतना जोर से चीख के बताओ। क्यों?
डेटा अच्छा होगा उतना हमारा एल्गोरिदम AI अच्छा परफॉर्म कर सकता है, राइट? तो मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि तुम लोगों को ये वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन तुम लोग इंटरेस्टेड हो नहीं हो देखने के, तो वी विल एंड दिस सेशन एज सून एज पॉसिबल, राइट? सो हमारी हायर व्यू है, एक माया सिस्टम है और एक टेस्ट IO सिस्टम है। ये क्या करते हैं माया? हायर व्यू हमारा क्या करता है प्लेटफॉर्म की आप सामने बैठे हो और आपसे खुद से क्वेश्चन पूछेगा, आप कंप्यूटर को आंसर दे रहे हो और कंप्यूटर उससे जज करेगा कि हाउ स्किलफुल यू आर, राइट? आपको सामने पर्सन की जरूरत नहीं है और आप चाहो तो उस सिस्टम से भी अपने रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और आप सैलरी स्ट्रक्चर पूछ सकते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, या आपकी जो भी क्वेरी हो सकती है वो आप एज अ टेक्स्ट फॉर्म में एंटर कर सकते हो, वो आपको आंसर निकाल के देगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, क्या आप ये बता सकते हो, चलो इतना तो बता दो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रोफाइल्स होती हैं एक IT कंपनी के लिए या फिर एक हेल्थ केयर के लिए या जहाँ पे भी आप जाना पसंद करते हो। आपने कुछ सोचा है कि BBA के बाद मुझे MBA करना है या जॉब करनी है? अच्छा, कितने लोगों को जॉब करनी है BBA के बाद? लोगों को MBA करना है, बाकी लोगों को कुछ नहीं करना। और जो MBA के स्टूडेंट है उनको MBA की तो मना कर रहे हैं कि MBA के स्टूडेंट नहीं है। MBA के स्टूडेंट क्या करते हैं? क्लास MBA की क्या करते हैं MBA के स्टूडेंट? अच्छा, MBA का स्टूडेंट कौन है? MBA वाले हाथ पे देना प्लीज। MBA स्टूडेंट्स उस गर्ल को बुलाना, प्लीज स्टैंड अप। दैट गर्ल, पिंक। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रोफाइल्स होती है? क्योंकि आपका MBA फिनिश हो रहा है, देन यू हैव टू डू अ जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो आप IT में जाना चाहते हो, हेल्थ केयर में जाना चाहते हो, किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो। हाँ, तो एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हमारी जॉब रोल्स हो सकते हैं जिसके लिए हमें नौकरी पे अप्लाई करना है? क्या हमारे स्किल सेट हो सकते हैं? अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था। आपकी कोई ड्रीम कंपनी है कि मुझे MBA के बाद इस कंपनी में नौकरी करने जाना है? ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपना ड्रीम बनाओगे, अब तो MBA भी कंप्लीट हो गई, अब तो बच्चे BBA के बाद भी बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट? सो कुछ कंपनीज के बारे में सर्च करना शुरू करो एंड अपना एक टारगेट बनाओ कि ठीक है नेक्स्ट ईयर तक मुझे इस कंपनी में प्लेस होना है, राइट? आपका कॉलेज भी अच्छे प्लेसमेंट देता है, तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि ठीक है मुझे इस कंपनी के लिए ये मुझे प्रोफाइल के लिए अपने आप को फिट करना है, राइट? So guys, do you have any questions from me related to AI, related to any organization, related to any skills, related to any job responsibilities? Do you guys have any question from me? कुछ जानना है, कुछ जानना है? बनाना है के लिए you should be technical, right? You should do any of the programming language. You can pursue Java, Python or any technical language course, right? हम बिना टेक्निकल कोर्स के भी डेटा से इंसाइट निकाल सकते हैं और AI का यूज कर सकते हैं, बट टू डेवलप द एल्गोरिथम्स, बट टू डेवलप द AI we should have to be like technical background, right? और कुछ क्वेश्चन? So guys, we are ending our session, right? आपको कुछ क्वेश्चन है, you can ask.
नौकरी यूज किया है किसी ने? नौकरी यूज किया है किसी ने? अभी तक रिज्यूम अपलोड किया है, रिज्यूम बनाया है? रिज्यूम बनाया है किससे? खुद से या फिर नौकरी से या किसी और पोर्टल से? खुद से बनाया है। कहीं पोस्ट कहीं अप्लाई किया है अभी तक? सेलेक्ट हुए हो? कहाँ सेलेक्ट हुए हो? ये कंपनी का नाम तो बता दो। चलो ठीक है, एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू। Keitanatham International Business School. It is with immense pleasure and gratitude that I extend our heartfelt appreciation to each and every one of you who contributed to the success of today's Management Development Program in HR, featuring the insightful disclosure by Ms. Priyanka Agarwal. Ms. Priyanka, remarkable expertise gleaned from 15 years of distinguished expertise in IT development and strategic planning has been invaluable. We appreciate Ms. Agarwal insightful disclosure to the active participation of all attendees. Special thanks to the organizing team for our efforts in making the event a success. On that note, I would like to request Professor Dr. Urvesh Chaudhary to present a memento to Ms. Priyanka Agarwal for gracing us with the presence today. Gracias.